Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to study in continuation of tenses. My last video was on past continuous tense and today we are going to study past perfect tense. So we have already studied present perfect tense. So we'll also look into that and see how it is almost similar. सिर्फ present perfect tense, past perfect tense सब कुछ same है except the timing. Present and past. Okay, so let's move further. इसमें क्या चीज़ है? If you have not watched that video, I'll attach the link to all my tenses video playlist in the last, so you can watch it or you can directly go to my channel and have a look at that. So now we see that I've always told perfect, जहाँ पे भी आपका ये आ रहा है past perfect tense, present perfect tense या future perfect tense. That means in all the all these three tenses, we only and only have to use this, that is verb's third form, always. Okay, verb का third form ही होगा. अच्छा चलिए, ये तो हो गई वर्ब की बात कि कौन से फॉर्म में होगा. ये होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? आप कहेंगे मैम आई प्लेड क्रिकेट. इसमें बता रहे हैं आप कि आपने क्रिकेट खेला था. और अगर मैं ये कहूँ आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था. इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क बहुत ही माइन्यूट पर एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि जब आप कह रहे हैं आई प्लेड क्रिकेट, इसमें आप बस ये बता रहे हैं आपने खेला, पर वो आपने खेलना ख़त्म किया, पूरा हुआ आपका खेलना, ये नहीं बताया जा रहा है. शी स्टडीड मैथ or she swam in the pool. But if I say I had played cricket, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था और मैंने क्रिकेट खेला था. इन दोनों में बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि एक आप जब डिफरेंस कैसे बताएंगे कि कोई काम आप कर चुके हैं और कोई काम आपने रैंडमली आप बता रहे हैं आपने किया था, अब हमें नहीं पता कि वो पूरा हुआ नहीं हुआ, वी डोंट नो. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जब ये परफेक्ट टेंस इस्तेमाल में आता है. दैट इज जब आप ये शो करना चाह रहे हो कि काम पूरी तरीके से परफेक्ट मीन्स खत्म हो चुका है. एट दैट टाइम यू यूज दिस परफेक्ट टेंस. और इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है पास्ट परफेक्ट में, दैट यू हैव टू यूज दिस हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैड. अगर प्रेजेंट होता तो आप हैज आप इस्तेमाल करते और पास्ट है तो हैड इस्तेमाल करेंगे. अब आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है कि भाई सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल्स के साथ हैव आता है. इसमें हैड है पास्ट परफेक्ट में. हैड all the pronouns, whether singular plural, all the nouns singular plural, कोई भी एक इंसान हो कई इंसान हो, you don't worry, just use had in पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, और हैड के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमें क्या पता चला, क्या है कि काम का पूरी तरीके से खत्म होना शो हो रहा है. आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था, मैंने क्रिकेट खेला था. ओके, सो wherever you see had and third form, verb's third form, you know it is past perfect tense. Okay, now let's move further into what all this tense expresses. So let's see what all it expresses. So past perfect tense expresses an action that took place in the past. Obviously past में कोई action जो हुआ था, that past perfect tense expresses. Okay, how? When I reached the school, the bell had rung. Now you'll see a combination of simple past tense, that is past indefinite tense, and past perfect tense. This is a combination sentence. तो हमने जब past tense पढ़ा था, simple past tense, so this is subject plus verb second form and object, isn't it? So when I reached home, जब मैं घर पहुंचा घंटी बज चुकी थी. Now you can see यहाँ पे जो बेल है वो बज चुकी है. मैंने जो शुरुआत में बताया था perfect, task is completed. So this sentence is showing the past perfect tense. Okay, subject had and verb third form, had and verb third form. So ring, rang, rung, third form. So when I reached the school, the bell had rung. Next, let's see an action completed in the past. Almost the same thing.
सो इट वॉज फन वेन ही हैड कम टू अ पार्टी. तो बहुत मज़ा आया था जब वो पार्टी में आया था. कंप्लीट चीज़ बताई गई है, पार्टी में आया था तब बहुत मज़ा आया था. इट वॉज फन वेन ही हैड कम टू अ पार्टी. हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, subject, had verb third form, object. Okay, next thing that it expresses is an unfulfilled desire of the past. कोई ऐसी desire जो पूरी नहीं हो पाई. पास्ट में आपकी कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई. आई विश आई हैड लिसन्ड टू माई मदर. आई विश आई हैड अ कार. आई विश आई हैड completed my work. So this is showing a unfulfilled desire. ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाई. So this is it, had and verb third form. An impossible condition of the past. Past में कोई ऐसी चीज़ जो कि या तो आपने की नहीं या आप कर सकते थे पर करा नहीं. Something like that which is not completed, which is not, as in which is not done totally. If you had done it, then it would have been something else. So if you had worked hard, you would have passed. अगर तुम past में पढ़े होते तो तुम पास हो चुके होते, पास हो जाते. सो इम्पॉसिबल कंडीशन. इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अब ऑब्वियसली अब तो वर्क हार्ड कर भी ले तो भी पास नहीं हो सकता क्योंकि अब तो रिजल्ट आ चुका है. सो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म, subject, had third form, and the rest of the predicate. Okay, sentence. So if you had worked hard, you would have passed. So these are the few examples and the places where past perfect tense is used. हम present भी देख लेते हैं. इसमें हमने क्या देखा था, just always perfect है तो verb third form, and इसमें helping verb होते थे has, have, और यहाँ पे सिर्फ change हो गया, that is had. Okay, now we'll move on to the sentences, that is affirmative, negative and interrogative, and there are types in interrogative जो कि हम आगे देखेंगे. अच्छा, आपको overall सिर्फ इस चीज़ को समझना है that perfect tense expresses something which is totally completed. Okay, an action that is completed in the past. Okay, let's move on. Moving on to the sentences, different types of sentences. First we have affirmative sentence. So the rule is very simple. The subject plus had plus verb's third form and object. Okay, so suppose we take the subject as in the people. The people had and the verb is work. Work का third form क्या होता है, worked. The people had worked at the office. Okay, so in this sentence we can clearly see had plus verb third form means it is a past perfect sentence. Okay, now what you have to do is you have to convert this into negative. Very easy, like every time we do it, just put this negative word no, not, never after the helping verb. Helping verb के बाद आपको ये negative word, यहाँ पे not necessarily there always be not, you can also have no or never. Okay, the people had never worked at the office. The people had not worked at the office. तो जहाँ जो भी suitable आपको लग रहा हो तीनों में से आप वो लगा सकते हैं. So here it will be the people had not worked at the office. So we can see had plus the negative word and verbs third form. Okay, now interrogative has 4 types. Mainly basically there are simple and double interrogative sentences. Simple वो sentences होते हैं interrogative में जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं. For example, had the people worked at the office, क्या वहाँ पे लोगों ने काम किया था, हाँ काम किया था, नहीं काम नहीं किया था. तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो कि आप जिनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं. पर कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनका जवाब आपको डिस्क्रिप्टिव वे में देना होगा कि कहाँ लोगों ने काम किया था. इसका जवाब आप यू कैन नॉट गिव इट इन येस और नो, यू हैव टू डिस्क्राइब और टेल वेदर विच पर्टिकुलर प्लेस द पीपल हैड वर्कड एट. सो these are the 2 basic types, simple and double interrogative. तो इसमें simple में तो कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, सिर्फ
स्वैप कर देना है सब्जेक्ट को हैड से और हैड को सब्जेक्ट से. सो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड होता था, अब यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे क्या हो गया, हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. और यहाँ पे एक वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट इज इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव दिस mark, question mark. Okay, so it will be had the people worked at the office, question mark. Now डबल इंटेरोगेटिव में आपको एज इट इज ये रूल तो लगाना ही है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए. ओके, कॉपी पेस्ट करिए, उसके आगे बस आपको एक वर्ड लगाना है, या तो वो WH वर्ड हो सकता है, दैट इज WH फैमिली का वर्ड, वेयर, व्हेन, who, whom, what, why. ओके, सो दिस, अदरवाइज हाउ लगा सकते हैं. तो इनमें से कोई भी एक वर्ड लगाइए और बाकी एज इट इज, हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, नो चेंज. तो सपोज यहाँ पे हमने लगाया वेयर हैड द वर्क पीपल वर्कड, नो वेयर नहीं लगा सकते क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस हमें तो जगह पता है. सो वाई हैड द पीपल वर्कड एट द ऑफिस, या व्हेन हैड द पीपल वर्कड एट द ऑफिस. ओके, सो वी कैन पुट इट एनी वे, या फिर हाउ हैड द पीपल वर्कड एट द ऑफिस. तो जो भी आपके सेंटेंस की डिमांड है उस अकॉर्डिंग आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको यहाँ पे लगा दीजिए. नाउ मूविंग ऑन टू, ओके वी हैव डन द सेंटेंस. नाउ नेगेटिव इंटेरोगेटिव. अब सपोज हमने ये बनाया था नेगेटिव सेंटेंस. अब कोई आप कह दे इस नेगेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव करो, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. ओके, जस्ट आपको नॉट पे ध्यान ही नहीं देना है. आपको जो यहाँ पे आपने फंडा इस्तेमाल करा था वही यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है. दैट इज, आपने क्या किया था, सब्जेक्ट को हैड से रिप्लेस करा था, इजंट इट? सो हैड पहले कर दिया था, सब्जेक्ट बाद में आ गया था. आपको यहाँ पे भी वही करना है, बाकी सेंटेंस को टच नहीं करना है. सो अगर आप सपोज आपको कोई नया बनाने को दे दे तो ऑलवेज रिमेंबर हैड से पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा ये नेगेटिव वर्ड आता है. ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, चाहे वो हैज़ हैव हो, चाहे हैड हो, चाहे विल हैव हो. सो हमेशा नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है. ओके, सो in these sentences, okay, so what we will do, as it is, had subject verb third form object question mark. सिर्फ यहाँ पे क्या था, जो not था वो हमने लगा दिया, जहाँ पे वो था उससे उसको रिप्लेस करना था और हमने उसको रिप्लेस कर दिया और बाकी सेंटेंस को एज इट इज रहने दिया. ओके, सो व्हाट हैपेंड हियर, had the people worked at the office, had the people not worked at the office, the people had not worked at the office, had the people not worked at the office. सिर्फ आपने स्वैप. ओके, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो सब हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना पड़ेगा, तब वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आने लग जाएगा. ओके, इंटेरोगेटिव में यही चेंज होता है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह वो आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आ जाता है. Okay, so the sentence will be had the people not worked at the office. बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बेसिक है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव है. सिंपल में आपको WH वर्ड नहीं लगाना होता है, डबल में सिर्फ ये वर्ड लगा देते हैं आप, और नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाते हैं, इंटेरोगेटिव में सिर्फ उसकी जगह बदल देते हैं. नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कुछ टेंशन नहीं लेना भाई, सिर्फ नॉट लगा इसलिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, कोई उसमें चेंज नहीं आया है, सेंटेंस एज इट इज है. ओके, अच्छा, अब नेगेटिव डबल इंटेरोगेटिव है तो ऑब्वियसली ऐसा वाला वर्ड जहाँ पे भी डबल, आप समझ जाइएगा कि WH वर्ड या हाउ लगाए मीन्स डबल इंटेरोगेटिव. अब नेगेटिव है तो क्या हुआ, है तो वही एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है. आप यहाँ देख सकते हैं WH वर्ड हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. बस बीच में जहाँ नॉट सेंटेंस में है वहाँ नॉट को हटाओ मत, बस लगे रहने दो, दैट्स इट. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा when had the people not worked at the office. as it is है ये वाला सेंटेंस, इसमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या था, नॉट था, पहले हेल्पिंग वर्ब के पहले बाद में था, तो अब सब्जेक्ट के बाद में हो गया. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया और सब्जेक्ट बाद में चला गया, तो इस वजह से नॉट वहीं का वहीं है, उसको कोई टच नहीं करना आपको. ओके, दैट वॉज इट. अब ये एक ओवरव्यू आप देख लीजिए पूरे रूल्स का, सेंटेंसेस के. So this completes our past perfect tense. In our next class
we'll be discussing past perfect continuous. Okay, so thank you so much. Or if you've understood, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you so much, and just wait for the next video. It's coming soon.